glands, which are sebaceous glands. They secrete wax. They will be trapping all the dust particles which enter the pinna along with the sound waves. साउंड वेव्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं. सो ये वैक्स ग्लैंड्स वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके दे विल बी सिक्रीटिंग इट आउटसाइड, सो दैट द ईयर ड्रम इज क्लीन. ये ड्रम के ऊपर, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ भी डस्ट सेटल नहीं होना चाहिए. Then we have seen the middle ear. Miss has is what you have to remember. 3 into 2, 6 is what you have to remember. Hammer shaped, anvil shaped, stirrup shaped, and you also have to remember the joints. Which is the joint between malleus and incus? Hinge joint. Yes. Hinge joint. And between incus and stapes? Ball and socket joint. So Ball and these are socket. also MCQs. These Okay. both, they will show diarthrosis type of joints. Diarthrosis means they are movable joints. They are not fixed joints. So that is again an MCQ, that they are movable joints. So this is the eardrum C. Then this is the malleus, incus and the stapes. Now inner ear, it is also called labyrinth. It is a fluid filled cavity जिसको labyrinth भी बोलते हैं. तो अगर ये labyrinth देखें तो इसमें दो टाइप के labyrinth रहेंगे. One will be the bony labyrinth and the other will be the membranous labyrinth. Bony canal के अंदर membranous canal है. So one is the bony labyrinth, one is the membranous labyrinth. Bony labyrinth ये outer रहेगा, membranous labyrinth ये inner रहेगा. So two parts will be there of this inner ear. उसमें से first part is cochlea, second part is vestibular apparatus. Cochlea will be dealing with hearing, vestibular apparatus will be dealing with balance. Up till now हमने हमेशा पढ़ा है कि ईयर का काम होता है hearing, बट ईयर का काम बैलेंसिंग भी होता है. इट बैलेंसेस आवर बॉडी सो दैट हम गिरे नहीं. इट्स गोइंग टू मेंटेन योर बैलेंस एवरीवेयर वाइल वॉकिंग, वाइल यू आर सिटिंग स्ट्रेट. हम स्ट्रेट बैठे भी हैं, एक पर्टिकुलर पॉस्चर मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेस्टिबुलर apparatus. So the inner ear will be having cochlea, vestibular apparatus. We have written all these points about the cochlea. It's a spiral shaped, coiled. Snail से उसका word derive हुआ है cochlea. It is the Greek word for snail. It's a 3.5 centimeters long tube. When it is uncoiled, 2.75 turns. इसमें 3 canals रहेंगे और 2 membranes रहेंगे. 3 canals में से 2 canals bony रहेंगे, MCQ. The bony canals are scala vestibuli and scala tympani. Whereas one membranous canal, the membranous canal is scala media, which is going to have the endolymph. And scala media is going to have the receptor organ for hearing. Again an MCQ कि 3 canals में से receptor organ कौन से canal में है? It is in the membranous canal, it is in scala media. And scala media is going to have endolymph. The outside fluid is going to be the perilymph. So ये सब हम लोगों ने देखा है. Reisner's membrane is the membrane which will separate scala vestibuli from scala media. इन तीनों canals में से scala vestibuli ऊपर वाला होगा, मतलब कॉक्लिया के ऊपर से जहाँ से vestibular canal start होता है वहाँ पे होगा scala vestibuli, बीच में scala media और end में scala tympani. There are going to be 2 membranes which will separate these 3 canals. So Reisner's membrane between scala vestibuli and scala media, basilar membrane between scala media and scala tympani. So अब आता है कि फ्लोर कौन बनाता है स्कैला मीडिया का? कौन बनाएगा स्कैला मीडिया का फ्लोर? बोलो, फ्लोर कौन बनाएगा? Basilar membrane. हाँ, और रूफ कौन बनाएगा? सानिका, who will make the roof? Reisner's membrane. Yes. Okay, and on which membrane will the organ of Corti be located? बोलो. Basilar. Yes, basilar membrane. Okay, now there will be 2 windows. एक window जिसको steps attached रहेगा. That window is the oval window. We also call it fenestra ovalis. This is going to open into the scala vestibuli. Then there is one round window which will be opening from the scala tympani into the middle ear.
सो मिडिल ईयर और इनर ईयर ये दो विंडोज से सेपरेटेड हैं. वन विंडो इज ओवल विंडो, अदर विंडो इज राउंड विंडो. And oval and round separate the middle ear from the inner ear. Helicotrema, this word you have to remember, it is the meeting point of scala vestibuli and scala tympani. Scala vestibuli और scala tympani जहाँ पे मिलते हैं वो पॉइंट इस डायग्राम में देखो, ये वाला पॉइंट हेलिकोट्रेमा होगा, जहाँ पे ये आउटर टर्न जस्ट ट्रेस, या आउटर टर्न कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे. And if you trace this, sorry, this will be the vestibuli, this will be the tympani. So ये vestibuli को trace करेंगे तो ये यहाँ ख़त्म होगा आगे, and इसको भी trace करेंगे तो यहाँ apex पे ख़त्म होगा, ये end point पे वो मिलेंगे. So when we open this tube, हम ये वाले point को helicotrema बोलते हैं, where the scala vestibuli and the scala tympani are meeting. And this blue thing is the membranous labyrinth. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि जैसे कॉक्लिया है वैसे ही ये वाले जो कनाल्स हैं, दिस वन कनाल, टू कनाल एंड दिस इज द थर्ड कनाल, दीज आर ऑल्सो मेम्ब्रेनस कनाल्स. देखो, विच आर गोइंग टू हैव द बोनी लैबिरिंथ एज वेल एज ये जो कनाल्स बनते हैं ये मेम्ब्रेनस कनाल्स हैं. देखो ये ब्लू पार्ट से कंटिन्यू हो रहे हैं ऊपर, सी. सो समझ लो, फिर इसका हम एक रफ डायग्राम करेंगे, कंसेप्चुअल डायग्राम करेंगे. सो दिस पार्ट वेयर माई कर्सर इज देयर इज द सैक्यूल, दिस पार्ट इज द यूट्रिकल, एंड दीज आर 3 सेमी-सर्क्युलर कनाल्स, 1, 2 एंड 3. एक एंटीरियरली रहता है, दूसरा पोस्टीरियरली रहता है और थर्ड लैटरली रहता है. There are going to be 3 semicircular canals. One is going to be anteriorly, other posteriorly. See this. This is anterior, this is posterior, and this is lateral. So 3 semicircular canals are there, MCQ. One is going to be anterior, one is going to be posterior, and one is going to be lateral. अब ये कैसे हमने देखा है कि ये तीनों डायरेक्शंस में बॉडी का बैलेंस बनाने वाले हैं. See this, I'll show you. I can draw one plane from your lateral side of the body. I can do one plane from your anterior side. देखो, एक ये प्लेन रहेगा जो नोज से पीछे, अगर आप साइडवेज खड़े हो तो, एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा और तीसरा ये वर्टिकल प्लेन रहेगा. Like this, there are 3 semicircular canals which will be at right angles to each other. ये तीनों एक्सिस देखो, they are at right angles to each other. So वैसे ही semicircular canals रहेंगे, they will be at right angles to each other. You have 3 semicircular canals, anterior, posterior and lateral. They will help balance your posture in all these directions. So vestibular apparatus, if we see, it is going to be made up of these 3 canals. See this. Anterior या superior canal, posterior canal and lateral और horizontal canal. ये 3 चीज़ें रहेगी हमारे vestibular apparatus में, जो कि हमारे semicircular canals हैं. Apart from this, you will have 2 sac-like structures. One is saccule and the other is utricle. One is saccule, other is utricle. So vestibular apparatus is made up of saccule, made up of utricle, made up of semicircular canals. Now you tell me कि ये पूरे structures membranous labyrinth है कि bony labyrinth है? बोलो. membranous labyrinth है. important MCQ. देखो, ये जो कॉक्लियर डक्ट है, कॉक्लियर डक्ट इज द अदर नेम फॉर स्कैला मीडिया विच इज द मेम्ब्रेनस कैनाल. इसी का कंटिन्यूएशन है ये सैक्यूल, ये यूट्रिकल एंड दीज 3 कैनाल्स. अब पूरे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में अगर मैं पूछूं कि कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं तो मुझे बताओ कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे. श्रेया, यू टेल मी. श्रेया पाटिल, पूरे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में ये वेस्टिबुलर एपरेटस और कॉक्लिया मिला के कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे?
बोलो। यस श्रेया, स्टार्ट। कौन बताएगा? बोलो। मैम सुपीरियर लैबिरिंथ, हाँ, सुपीरियर कनाल, inferior, ओके, posterior canal and horizontal canal, यस uterine saccule, यस, then एंड दिस पार्ट cochlea. cochlear duct or the scala media. This is a very important MCQ. It comes कि membranous labyrinth में कौन कौन सी चीज़ें रहेगी अब. So membranous labyrinth is going to have all these structures. The cochlear duct यानी कि जो scala media था उसी का continuation ऊपर will be the saccule, will be the utricle and the semicircular canals. और सेमीसर्कुलर कनाल्स का स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे तो उसके जो पार्ट्स हैं वो भी मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में आएंगे. नाउ ईच सेमीसर्कुलर कनाल इट इज गोइंग टू बी हैविंग स्वोलन स्ट्रक्चर्स. ये देखो कनाल जहाँ से स्टार्ट होता है कनाल के बेस पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर रहेगा. सी दिस, ये देखो बेस पे देखो हर एक कनाल के, एंड इट इज सेमी सर्कल, इट्स नॉट अ कंप्लीट सर्कल. सो ये एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल, इनके बेस पे ये स्वोलन स्ट्रक्चर रहेगा. सी दिस इज कॉल्ड द एम्प्यूला. दिस स्वोलन स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड द एम्प्यूला. See, these are the swollen structures of the three canals. So they are called ampulla. See, these are the ampullae, the swollen structures. तीन हैं इसीलिए ampullae. And these are the semicircular canals or the semicircular ducts. They will be at right angles to each other. और ये जो पोर्शन है उसमें से एक सैक्यूल है और एक यूट्रिकल है. One is saccule, one is utricle, and then you have these three semicircular canals. हर कनाल का बेस एक swollen structure है. देखो इसका नाम है ampulla. So this is a part which you will have to remember these terms. Like उसको याद ही रखना पड़ेगा. There is no other trick to it. So ये कॉक्लिया की continuation है ऊपर vestibular canal. These semicircular canals, the ampullae, and this saccule and the utricle. Now you tell me कि total कितने ampullae हैं? 6. नहीं 3 है. वो एक ही जगह से, जहाँ से सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना वहाँ पे ही रहेंगे. तो टोटल ये 3 ही रहेंगे. टोटल 3 ही रहेंगे. वो जहाँ से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जो उनका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. So this one saccule, utricle and these 3 ampullae. So all these जो हाँ बोलो. Ma'am, but 2 years will have 6, ma'am. हाँ, two will have 6. I'm speaking of this diagram. Okay. Yes. 2 will have 6. Okay. So we are speaking of this diagram over here. This is एक ही ईयर का. तो ये 3 और ये 2, टोटल 5 ये स्ट्रक्चर्स रहेंगे. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिसमें सेंसरी एपिथेलियम रहेगा या सेंसरी ऑर्गन रहेगा फॉर बैलेंस. देखो एक सैक्यूल, दूसरा यूट्रिकल और तीसरा ये तीनों एम्प्यूली. सो 1 2 3 4 5 these are going to have the सेंसरी ऑर्गन फॉर बैलेंस. और सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग कहाँ पे था? यहाँ पे था. विच वॉज द लेयर विच वॉज हैविंग सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग? Scala media. हाँ. एंड विच वॉज द सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग? नाम बताओ. ऑर्गन ऑफ कॉर्टा. सो हियरिंग का सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे है कॉक्लिया में. बैलेंस के सेंसरी ऑर्गन वेस्टिबुलर एपरेटस में है, सैक्यूल में है, यूट्रिकल में है और ये एम्प्यूली रीजन में है.
सो अगेन यहाँ पे वो हेयर वाले सेल्स होंगे, हेयर लाइक सेल्स विल बी देयर जो मूव होंगे। अगर आप आपका हेड राइट साइड मूव कर रहे हो तो यहाँ का पूरा फ्लूइड ये मूव होगा राइट साइड, ये हेयर सारे टिल्ट होंगे। आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो फ्लूइड मूव होगा लेफ्ट साइड पे। सो दैट इज हाउ दीज हेयर सेल्स दे विल रिसीव द सेंसेशन। ये पूरा स्ट्रक्चर इसमें अंदर पूरा एंडोलिम्फ भरा हुआ है। सो ये जो यहाँ पे एम्प्यूली रहते हैं वहाँ पे रहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, जिसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। एम्प्यूला में प्रेजेंट है इसीलिए क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। ये क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो फिर से मूव होते हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ दिस एंडोलिम्फ। देख लो, देखो हेड जैसे ही मूव होता है तो एंडोलिम्फ का जो पूरा फ्लूइड है वो पूरा मूव होता है। सी दिस, ये दिखा रहा है क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, साइड में ये जो स्क्वायर है इट्स मूविंग। दैट इज हाउ दे मेंटेन द बैलेंस कि आप सिर्फ अपना हेड राइट साइड मूव कर सकते हो, आप गिरते नहीं हो पूरा राइट साइड, बट यू हैव अ लिमिट टू इट। आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देती है कि अब ये मैक्सिमम लिमिट है राइट साइड जाने का, अदरवाइज गिर जाओगे राइट साइड। सो दीज काइंड ऑफ सेमी सर्कुलर कनाल्स आर गोइंग टू बी देयर। सी, आप आगे पीछे भी जब होते हो तो ये मूव करते हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ बस, आप बस में बैठे हो लेकिन बस चल रही है, कभी रिवर्स लेगी कभी आगे चल रही है, कंटिन्यूस आगे एक पेस में चल रही है, तो आपकी बॉडी आगे चलती रहती है बट आपकी बॉडी का बैलेंस बना हुआ रहता है। ट्रेन में बैठे हो आप तो आप मूव कर रहे हो, उसके साथ आपकी बॉडी भी मूव करती है, दैट बैलेंस इज मेंटेन्ड। जब हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं सो यू गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, बट आप गिरते नहीं हो लिफ्ट में, आपका बैलेंस मेंटेन्ड रहता है। सो दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर द सेंसरी ऑर्गन्स फॉर बैलेंसिंग। ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बॉडी का बैलेंस बना के रखते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स सब राइट एंगल्स टू ईच अदर हैं। दे डू द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखो ये मेरा कॉक्लियर डक्ट है, ये पूरा ब्लू पार्ट इज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, सी, एंड द पर्पल पार्ट इज द बोनी लैबिरिंथ। अच्छे से समझ लो फिर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो पहले पूरे स्ट्रक्चर्स। यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट सैक्यूल, सेकेंड पार्ट यूट्रिकल, देन दीज आर द एम्प्यूली, ये जो सोलिन पोर्शंस हैं। सो ये मेरा एक एंटीरियर कनाल, पोस्टीरियर कनाल और लैटरल कनाल, दीज विल बी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो। Semicircular canals are surrounded by membranous labyrinths. सेमी सर्कुलर कनाल्स खुद बने हुए मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय बोनी लैबिरिंथ। देखो पर्पल कलर, जैसे यहाँ पे ये स्कैला वेस्टिबुली और स्कैला टिम्पैनी रहता है, यहाँ पे भी पूरे बोनी कनाल्स रहते हैं। सी, सो आउटसाइड देयर इज गोइंग टू बी पेरीलिम्फ, बट ये कनाल्स के अंदर देयर इज गोइंग टू बी एंडोलिम्फ। ऑलराइट, Okay. मेम्ब्रेनस सेमी सर्कुलर कनाल्स के अंदर एंडोलिम्फ रहेगा। ये कॉक्लियर डक्ट में एंडोलिम्फ है, स्कैला मीडिया में वही पूरा एंडोलिम्फ यहाँ पे है, और बाहर से पेरीलिम्फ रहेगा। सी दिस नाउ, ये सैक्यूल, ये यूट्रिकल, ये यूट्रिकल है बड़ा स्ट्रक्चर, ये है सैक्यूल, और ये 3 एम्प्यूली है। इन पांचों में सेंसरी ऑर्गन रहता है जहाँ पे हेयर लाइक सेल्स रहते हैं, विच विल रिसीव, आप जब भी मूव करोगे तो ये पूरा फ्लूइड मूव करेगा और इनको सेंसेशन देगा, तो ये हेयर्स मूव होंगे। तो ये जो एम्प्यूला में जो स्ट्रक्चर्स हैं सेंसरी वाले, उसका नाम है क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। सी दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सेल्स।
और सैक्यूल और यूट्रिकल में जो हैं ये वाले सेंसरी ऑर्गन्स, उसका नाम है मैक्यूला। ये मैक्यूला है। ये नाम थोड़े कंफ्यूजिंग है, इसको हम लिख लेंगे मैच द फॉलोइंग के जैसे लिख लेंगे, सो दैट यू हैव इट हैंडी टू रिमेंबर। देखो, एम्प्यूला में जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। दिस इज क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, हेयर लाइक सेल्स जिनके नीचे से एफरेंट नर्व फाइबर निकलता है, सेंसेशन लेके जाता है ब्रेन को। और ये है मैक्यूला। मैक्यूला इज प्रेजेंट इन द सैक्यूल एज वेल एज यूट्रिकल। सो टोटल 5 जगह पे सेंसरी ऑर्गन्स रहेंगे यहाँ पे वेस्टिबुलर एपरेटस में। 3 तो ये कनाल्स में हो गए, एक यूट्रिकल में और एक सैक्यूल में, ऐसे 5 हो गए। ये हेल्प करते हैं बैलेंस बनाए रखने में। ये जो पूरा ऑरेंज पार्ट है, इट इज गोइंग टू हैव द एंडोलिम्फ, देखो। और ये जो पूरा ब्लू पार्ट है उसमें रहेगा आपका पेरिलिम्फ। These are the bony canals. This is orange one is the endolymph. ये देखो, अगर मैं देखूं पूरा एक कॉक्लिया, ये कॉक्लियर डक्ट के साथ वेस्टिबुलर कनाल्स, तो ये पूरा है, ये पूरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके बाहर अभी हम बोनी कनाल्स बना सकते हैं। सो ये सैक्यूल, ये यूट्रिकल, ये 3 एम्प्यूला, 1, 2 and 3. Swollen structures at the base of each canal are ampulla. सैक्यूल और यूट्रिकल ये भी swollen structures हैं of this vestibular apparatus. So देखो, जब हम स्विंग करते हैं, फुगड़ी खेलते हैं, अगर हमने बहुत देर फुगड़ी खेली है तो स्टॉप करने के बाद भी हमारा बॉडी थोड़ा घूमता है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? वंस यू स्टॉप, you still have the body rotating, you feel you are still playing fugdi. yes, experience किया है ये? Yes ma'am. हाँ, या फिर वो बड़ा वाला झूला, किसी भी फेयर में वो बड़ा झूला जो सर्कल सर्कल घुमाता है आपको, नीचे उतरने के बाद 2 मिनट और लगता है कि हम घूम ही रहे हैं। दैट इज बिकॉज एंडोलिम्फ की मूवमेंट बंद नहीं हुई है। ये हम स्टेबल खड़े हैं, स्टेशनरी खड़े हैं, तो हेयर सेल्स में कोई भी मूवमेंट नहीं है। वंस यू आर मूविंग, यू आर स्विंगिंग, सी, तो ये हेयर सेल्स की मूवमेंट होती है, ये एंडोलिम्फ की मूवमेंट होती है। एंडोलिम्फ में मूवमेंट हुई तो ये हेयर सेल्स मूव होते हैं, तो ये सेंसेशन जाता है ब्रेन के पास। बट आप गिरते नहीं हो, आपका बैलेंस बना हुआ रहता है। व्हेन यू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, तब आप गिरते हो। विद इन लिमिट्स आपकी बॉडी आपको बताती है कि इतना आप बैलेंस कर सकते हो। जब हम कोई ऑब्जेक्ट उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, देखो, तो हम गिर नहीं जाते हैं फ्लोर पे, हमको बैलेंस होता है हमारी बॉडी कि कहाँ तक हम नीचे झुक पाएंगे और फिर हम ये ऑब्जेक्ट उठाएंगे। सो ये मूवमेंट होती है, ये देखो, ये वाले हेयर सेल्स की, ये अभी स्टेशनरी हैं। जब आप बेंड करते हो तो ये नीचे बेंड होते हैं सारे हेयर सेल्स, and they maintain the balance of the body. This is what you have to remember. ये देखो, ये स्टेशनरी है। एक एक हेयर सेल के नीचे से ये सेंसरी नर्व निकलेगी जो लेके जाएगी ब्रेन के पास सेंसेशन। देखो यहाँ से, तो ये हेयर सेल्स के ऊपर ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है विच इज कॉल्ड क्यूपुला। बहुत सारे नाम याद रखने हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिख लेंगे। दिस इज द क्यूपुला। सो एम्प्यूला, एम्प्यूला के अंदर क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, और क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस का एक पार्ट है ये क्यूपुला। द मूवमेंट इज गोइंग टू स्टिम्युलेट द हेयर सेल्स। देखो यहाँ पे स्टिम्युलेट हो गए हैं, सब मूव होंगे और ये सिग्नल भेजेंगे थ्रू दिस सेंसरी नर्व। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होगा, जब ये हेयर सेल्स मूव होंगे इम्पल्स जनरेट होगी और फिर ये ट्रैवल होगी यहाँ से। सो अब ये स्ट्रक्चर देखो, आप लोगों को समझ रहा है क्या? दिस इज द सैक्यूल,
This is the utricle. These three are the ampullae, and then these are the semicircular canals. देखो ये पूरा जो बाहर का ग्रे स्ट्रक्चर है वो बोनी लैब्रिंथ है, और जो पूरा ब्लू है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। जो पूरा ग्रे स्ट्रक्चर है वो बोनी लैब्रिंथ है, पूरा ब्लू है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। सो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में आ जाएगा मेरा कॉक्लियर डक्ट, मेरा सैक्यूल, यूट्रिकल, एम्प्यूला, सेमीसर्कुलर कनाल्स, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस, मैक्यूला। ये सारे हम बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में इंक्लूडेड है। देखो ये हेयर सेल्स रहते हैं, इनके नीचे से नर्व फाइबर्स रहेंगे, जैसे हमारे आई में थे फोटो रिसेप्टर सेल्स के नीचे बाइपोलर न्यूरॉन्स और गैंग्लिनेटेड सेल्स। सो यहाँ पे ये नीचे से रहेंगे। सी ऊपर ये हेयर सेल्स रहेंगे। अब एक और चीज़ इसमें याद रखनी है, जो कि यहाँ पे ये ओटोलिथ्स रहेंगे। ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स रहते हैं एंडोलिम्फ में। ये आके टकराते हैं ये हेयर सेल्स से जब हम मूव करते हैं। जब हम स्टेशनरी हैं तो ये ओटोलिथ्स एक जगह पे रहते हैं, जब हम मूव करते हैं तो ये इधर उधर मूव हो जाते हैं, सब डिस्पर्स हो जाते हैं एंडोलिम्फ में। ये आके टकराते हैं हेयर सेल्स से, तो एक इम्पल्स जनरेट होती है जो यहाँ से ट्रैवल होती है। ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इसके डिटेल में हमको बिल्कुल नहीं जाना है, बट सिर्फ ये ओटोलिथ्स यू हैव टू रिमेंबर दैट ये हेयर लाइक सेल्स रहेंगे क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस और मैक्यूला में, जो हेल्प करेंगे। आप स्टेशनरी हो तो ये ऐसे खड़े हैं, देखो देयर इज नो मूवमेंट, क्यूपुला इज ऑल्सो स्ट्रेट, दिस इज एंडोलिम्फ, ये जो मेरा सेमी सर्कुलर कनाल है ये उसका एम्प्यूला का पार्ट है। सी हम मूव कर रहे हैं, देखो तो ये मूव करते हैं, तो ये क्रिस्टा जब मूव होंगे ये ओटोलिथ्स आके टकराते हैं हेयर सेल्स को और ये इम्पल्स जनरेट होती है। सी दिस, ये हेयर सेल्स के ऊपर ये ओटोलिथ्स रहते हैं। तो जब मूवमेंट होगी ये आके इनको टकराते हैं, और फिर हर हेयर सेल के नीचे से देखो ये नर्व फाइबर निकल रहा है। देखो ये बनाता है हमारी ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व का दूसरा नाम क्या है? ऑडिटरी क्रेनियल नर्व का दूसरा नाम क्या है? ओके, इट इज विच क्रेनियल नर्व? Eighth cranial nerve, and it is sensory or motor? चलो कैलकुलेट करो, सम से मैरी मनी बट सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज सेंसरी, एथ क्रेनियल नर्व, ऑडिटरी, सेंसरी। ये ईयर से लेके जा रही है ब्रेन के पास, तो ये सेंसरी होगी। इस ऑडिटरी नर्व का दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलो कॉक्यूलर नर्व। हमने उस दिन वो चार्ट में देखा था, मैंने आपको बोला था कि बाद में बताएंगे कि ये वेस्टिब्यूलो कॉक्यूलर क्यों बोलते हैं इसको। वेस्टिब्यूलो कॉक्यूलर इसीलिए क्योंकि वेस्टिब्यूल से भी लेके जाएगी सेंसेशन और कॉक्लिया से भी लेके जाएगी सेंसेशन। Vestibulo-cochlear nerve is auditory nerve which is going to carry the impulse of hearing and balance from the ear to the brain. It is going to carry the impulse of hearing and balance from the ear to the brain. चलो क्विकली डायग्राम कर लेते हैं, लिखेंगे भले उसको, कल डायग्राम कर लेते हैं अभी इसका, सो दैट यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर।
सी नाउ, कॉक्लिया के ऊपर रहेगा ये वेस्टिबुलोकॉक्युलर नर्व। सो जब हम सेमी सर्कुलर कनाल्स बना रहे हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ 3 canals like this. One is this, other is this, and third is this. पहले तो ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स बना लेंगे, उसके बाद आई एम गोइंग टू डबल इट लाइक दिस। सो हर यहाँ वाले राउंड पे वी विल डू swollen structure and then double it. See. तो ये वाले एंड्स पीछे से जाएंगे, यहाँ पे जो ये swollen structures हैं, देन यहाँ पे यू विल हैव द यूट्रिकल एंड द सैक्यूल, ये आके यहाँ ज्वाइन होगा। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे जो डायग्राम है देखो, स्कैला मीडिया से ये वाला जॉइंट है। सी, सो दिस विल बी द सैक्यूल, this will be the utricle, this will be my first semicircular canal, second semicircular canal and my third semicircular canal। देखो, फर्स्ट को अगर मैं एंटीरियर लिखूं, सेकेंड को पोस्टीरियर एंड थर्ड को लैटरल या हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज़ हाउ वी विल डू दिस सिंपल डायग्राम। पहले 3 कनाल्स बना लेंगे और फिर ये यूट्रिकल और सैक्यूल। इफ़ यू वांट यू कैन डू द कॉक्लिया फ्रॉम हियर। सो दिस विल बी माय वेस्टिबुलर apparatus। ये बाहर पेरीलिम्फ रहेगा, अंदर एंडोलिम्फ रहेगा, ये पूरा अंदर एंडोलिम्फ है। ऑल दिस स्पेस इनसाइड द कैनाल्स। This structure is going to be my ampullae। ये swollen structures जो हैं वो हैं ampulla। और अब हर एक एम्प्यूला में क्रिस्टा एम्प्यूलरिस रहेगा, which will be these hair-like cells। सेंसरी ऑर्गन है जो, तो ये हो जाएंगे मेरे क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। सी, वेराज यहाँ पे भी रहेंगे ये स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को बोलेंगे मैक्यूली या मैक्यूला। डबल है तो मैक्यूली, सिंगल है तो मैक्यूला। और अगर मुझे ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, ये क्रिस्टा एम्प्यूलरिस बनाना है, तो ये मेरे सेल्स रहेंगे, ये मेरे ऊपर के सेल्स रहेंगे, मेरे स्टीरियोसीलिया या काइनोसीलिया बोलेंगे इनको। एंड इसके ऊपर रहेगा जेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द क्यूपुला। ये है क्यूपुला। Cupula is not there for you in the NCERT textbook. You just have to remember that the ampulla is going to have the sensory organs, the utricle is going to have, and the saccule is going to have. ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा एक क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। So see that you understand this complete thing.
अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर एपरेटस का, उसको मर्ज कर देंगे यहाँ पे ये कॉक्लिया के साथ। ये बनाए, ये मैंने स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसमें ये 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स बनाए हैं, बट दैट डायग्राम का डिटेलिंग नहीं है वेस्टिबुलर एपरेटस की। सो उसमें वी कैन ड्रॉ द एम्प्यूली, वी कैन शो द सैक्यूल एंड यूट्रिकल, we can label the canals, and we can show crista ampullaris and macula. ये देखो, ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन है हेयर सेल्स के ऊपर। These otoliths, they are calcium carbonate crystals. So ये जब मूव करते हैं, ये जाके स्ट्राइक होते हैं हेयर सेल्स को, तो नर्व फाइबर्स यहाँ पे स्टिम्युलेट होता है और इम्पल्स जनरेट होती है और यहाँ से जाती है। So you can do all types of dances, you can do all type of yoga, just because हम ये balancing कर सकते हैं. So ear will be responsible for all these. Just because you can balance, you can do all this. किसी को कुछ डाउट, किसी को कोई चीज़ नहीं समझी है तो पूछो। राइटिंग पार्ट इसका करेंगे हम, आज हमने नोट्स नहीं लिखे हैं। वी विल राइट दिस डाउन। सी बहुत लंबी जर्नी करने के बाद वी फील कि हम अभी भी ट्रेन में ही बैठे हैं। अगर आप 10 आवर्स ट्रेन में बैठे हो, उतरने के बाद वो सेंसेशन जाती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है वापस एंडोलिम्फ को बैलेंस होने में। इतनी देर से जो मूवमेंट हो रही थी एंडोलिम्फ की, वो बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो वो मोशन सिकनेस होती है हमको। यहाँ उतरने के बाद, झूले से उतरने के बाद भी लगता है कि अभी तक झूला झूल रहे हैं। चलो क्विकली ओपन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हम इतना पार्ट रीड करेंगे और फिर ये मीटिंग बंद करेंगे। राइटिंग पार्ट हम लोग कल कर लेंगे उसका। All of you open your NCERT textbook. Ear performs two sensory functions, hearing and maintenance of body balance. Anatomically, ear can be divided into 3 major sections: outer ear, middle ear, inner ear. अब आपको ये सारे outer, middle, inner में कौन से parts आते हैं वो आपको लिखते आने चाहिए. So just see, make 3 columns: outer ear, middle ear, inner ear, and see, you can write all these parts after the meeting. Okay. Outer ear will consist of pinna and external auditory meatus or the canal. Pinna will collect the vibrations in the air which produce sound. External auditory meatus leads inwards and extends up to the tympanic membrane or the eardrum. There are fine hairs and wax secreting glands in the skin of the pinna and the meatus. So pinna और meatus दोनों में रहेंगे ये wax secreting glands, और hairs भी रहेंगे. Tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin outside and mucous membrane inside, MCQ. Middle ear consists of 3 ossicles called malleus, incus and stapes, which are attached to one another in a chain-like fashion.
Malleus is attached to the tympanic membrane and the stapes is attached to the oval window of the cochlea. मतलब एक external ear को attached है, एक inner ear को attached है. Ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear. A eustachian tube connects the middle ear with the pharynx. It helps in equalizing the pressures on either side of the eardrum. See that you understand this complete thing which is written. Now the fluid filled inner ear called labyrinth consists of two parts, bony and the membranous. Bony labyrinth is a series of channels. Inside these channels lies the membranous labyrinth. So bony और membranous में से कौन सा outside है कौन सा inside है, तो bony outside होगा, membranous inside होगा, which is surrounded by a fluid called perilymph. So membranous labyrinth is surrounded by perilymph. Membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph. The coiled portion of the labyrinth is called cochlea. Membranes constituting the cochlea में अब दो membranes आएगी, Reisner's membrane and basilar membrane. Divide the surrounding perilymph filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli and a lower scala tympani. तो बीच का हो जाएगा scala media. The space within the cochlea called scala media is filled with endolymph. At the base of the cochlea, scala vestibuli ends at the oval window, while the scala tympani terminates at the round window, which opens into the middle ear. Organ of Cottae is a structure located on the basilar membrane MCQ, contains hair cells, acts as auditory receptors MCQ. Hair cells are present in rows on the internal side of the organ of Cottae. The basal end of the hair cell, base उसका base जो रहेगा वहाँ पे रहेंगे efferent nerve fibers और उसके apical part पे होंगे stereocilia. A large number of processes called stereocilia are projected from the apical part of each hair cell. नीचे से nerve निकलेगी, ऊपर ये hair cells रहेंगे. Above the rows of the hair cells is a thin elastic membrane called tectoral membrane. So जब भी कोई sound जाएगा ear में, ये hair cells ऊपर बचते हैं, tectoral membrane से जाके टकराते हैं और वो frequency मिलती है हमको. Inner ear also contains a complex system called vestibular apparatus. Located above the cochlea, MCQ, vestibular apparatus is located above the cochlea. Vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canals and the otolith. Macula is the sensory part of saccule and utricle MCQ. Saccule और utricle में जो sensory part है उसको macula बोलते हैं. Each semicircular canal lies in a different plane at right angles to each other. Membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canals. Base of the canals is swollen and is called ampulla. This ampulla, it contains a projecting ridge of cells called crista ampullaris, which has the hair cells. The saccule and the utricle contain a projecting ridge called macula. Crista and macula are the specific receptors of the vestibular apparatus MCQ. Crista और macula दोनों vestibular apparatus के receptors होते हैं, responsible for maintenance of balance of the body and posture. किसी को कुछ डाउट बेटा यहाँ पे तो बोलो. ये एक एक लाइन MCQ है और ये थोड़ा सा ये वाले स्ट्रक्चर्स लर्न करने पड़ेंगे, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. चलो, now one of you just explain the mechanism of hearing and then we end the meeting. कहाँ से आएंगे साउंड वेव्स? हाँ, फिर then to the canal and then to the eardrum
Yes, then. to the middle ear, iris, incus, and stay. Yes, then. From the oval window, it will enter the cochlea, the sound waves, and the receptors in the scala media will send the auditory nerve. No, the And basilar membrane will move because of movements in the perilymph and endolymph. Basilar membrane में waves आएंगे, ripples आएंगे. Because of that, the hair cells will move. And hair cells will press against what? Hair cells के ऊपर क्या है? Tectoral membrane. Tectoral membrane. हाँ, the stereocilia will press over there. So as a result, the nerve impulse will be generated and it will travel in the associated efferent neurons. See, I am quickly reading. External ear receives sound waves, directs them to the eardrum. Eardrum vibrates in response to the sound waves, and these vibrations are transmitted through the ear ossicles to the oval window. The vibrations are passed through the oval window onto the fluid of the cochlea, where they generate waves in the limbs. The waves in the limbs, that is both the perilymph and endolymph, induce a ripple in the basilar membrane. These movements of the basilar membrane bend the hair cells, pressing them against the tectorial membrane. As a result, nerve impulses are generated in the associated efferent neurons. These impulses are transmitted by the efferent fibers via auditory nerves to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and the sound is recognized. Means you should have previous memory कि वो sound, वो meaning क्या है उस sound की, तो आप correlate कर सकते हो कि जो बोल रहे हैं वो आपको पता है. So previous experience, previous memory is also required. इसको कल लिख लेंगे, इसका राइटिंग पार्ट कल कर लेंगे. चलो, किसी को कुछ डाउट है तो बोलो बेटा. जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट चैप्टर फॉर लेवल 1 टेस्ट टुमारो. आई वुड एडवाइज कि सब लोग टेस्ट दो. इट्स ईजी. सिर्फ एनसीईआरटी भी अगर आप करके आ रहे हो, रिवाइज करके आ रहे हो, आपके नोट्स देख के आ रहे हो, तो यू विल बी एबल टू गिव द टेस्ट एंड स्कोर गुड ऑल्सो. चलो, किसी को कुछ डाउट है बोलो. ऑल राइट, सबको समझ रहा है? वैष्णवी, ईशा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. both the Shreyas, Shreya Patil, Shreya. Yes, ma'am. Yes, Preksha. Yes, ma'am. Khushi, Samiksha. Yes, ma'am. All right.